students, welcome to our study channel Make Study Easy Classes. I am your math mentor Ashish Singh. Today we will discuss remaining part of trigonometric ratio like values of trigonometric ratio, some identity of trigonometric ratio, trigonometric ratios of complementary angles. Let's see first topic, values of trigonometric ratio of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree with the help of a trick. And the trick we write 0, 1, 2, 3, 4. You can see the maximum number of 4 in this table. So divide 4 by all numbers. And taken roots all of the ratios. If we solve one by one, then we can find the value of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Zero. Solve root 1 by 4 means 1 by 2 का whole of square. 1 by 2. We can write here 1 by 2 in place of 1 by 4. 2 times we can write here 1 by root 2. Here root 3 by 2 because square of 2 is 4. Okay. 4 1 times means 1. Okay. The values of sine 0 is 0, sine 30 is 1 by 2, sine 45 1 by root 2, sine 60 is root 3 by 2 and sine 90 is 1. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज हैं वो कैसे एक ट्रिक की हेल्प से आसानी से आ गई. ओके. कॉस में सिमिलरली क्या करते हैं, अब 4 से स्टार्ट करते हैं. 4 3 2 1 0 एंड डिवाइडेड बाय 4. ओके. Taken root all the ratios. And here 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. Because 0 divided any number comes 0. अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है. और अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आता है, इन्फिनाइट आता है. ओके. You know 10 is the ratio of sine and cos. Okay. So here you can write the value of 0, sine 0 and the value of cos 0. Okay. Here 0. Value of sine 30 1 by 2 and value of root cos 30 root 3 by 2. Here solve it. 1 by root 2 divide root 3 by 2 means 1 by 2 into 2 by root 3. जब हम ये डिवाइड का साइन हटाते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा इनवर्स हो जाता है. ओके. 2 से 2 कैंसिल आउट. यहां पर क्या आ गया, 1 by root 3. ओके. हियर द वैल्यू ऑफ tan 45, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ साइन 45 मीन्स 1 by root 2 अपॉन वैल्यू ऑफ cos 45 मीन्स 1 by root 2. ये दोनों कट हो जाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. द वैल्यू ऑफ tan 60 मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन 60 root 3 by 2 अपॉन वैल्यू ऑफ cos 60 मीन्स 1 by 2. Here solve it. We can find
root 3 by 2 upon 1 by 2. Okay, you can write here root 3 by 2 into 2 by 1. Root 3. Okay, and value of sin 90 1 and value of cos 90 0 means infinite. Okay, did you understand it? Value is reciprocal of sin 0 means value of sin 0 is 0, infinite. If any number divides by 0 comes infinite. Okay, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इन्फिनाइट आता है. Let's see the value of cosec 30. Cosec 30 means reciprocal of sin 30. Here value of sin 30 is 1 by 2. So value of cosec 30 will be reciprocal of sin 30 means 2. Value of cosec 45 reciprocal of sin 45 means root 2. Value of cosec 60 means reciprocal of sin 60 means 2 by root 3. Value of cosec 90 means reciprocal of sin 90 means 1 by 1 means 1. Okay, value of sec 0 means reciprocal of sin cos 0 because sec is reciprocal of cos. Okay, so 1 by 1 means 1. Sec 30 reciprocal of cos 30 means 2 by root 3. Sec 45 means reciprocal of cos 45 means root 2. And sec 60 means reciprocal of cos 60 means 1 by 2 2. Sec 90 means reciprocal of cos 90 and value of cos 90 is 0, so 1 by 0 means infinite. Okay, cot 0 reciprocal of tan 0 because cot is reciprocal of tan. So 1 by 0 means infinite. Cot 30 reciprocal of tan 30 means root 3. Cot 45 means reciprocal of tan 45 means 1 by 1 1. Cot 60 reciprocal of tan 60 means 1 by root 3. Cot 90 means reciprocal of tan 90 and value of tan 90 is infinite means 1 by infinite 0. Here you can say, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो tan की वैल्यूज हैं वो साइन और कॉस की रेशियो की वैल्यूज के इक्वल है. कॉसेक की जो वैल्यू है वो साइन की रेसिप्रोकल है मतलब उल्टी है, और सेक की जो वैल्यू है वो कॉस की रेसिप्रोकल मींस कॉस की उल्टी है, और कॉट की जो वैल्यूज हैं वो tan की रेसिप्रोकल है मतलब tan की उल्टी है. लेट्स कम एंड सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. Question is find the value of sin 45 plus cos 45 upon sec 30. We have find the value of sin 45 plus cos 45 upon sec 30. You know the value of sin 45 is 1 by root 2, the value of cos 45 is 1 by root 2 and the value of sec 30 is 2 by root 3. Since value of sin 45 and cos 45 is 1 by root 2 and value of sec 30 is 2 by root 3. Okay, take LCM रूट 2 एंड रूट 2 का एलसीएम लेने पर हमें रूट 2 मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 बाई रूट 3. 2 बाई रूट 2 अपॉन 2 बाई रूट 3.
2/√2, और ये अपॉन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स √3/2, 2 कैंसिल ईच अदर इन 1 टाइम्स, मीन्स √3/√2 is the answer. Second question is find the value of tan 30 plus cosec 30 upon cos 45. We have tan 30 plus cosec 30 upon cos 45. You know the value of tan 30 is 1/√3 and the value of cosec 30 is 2. Means we can write here 2/1 because here denominator is 1 and the value of cos 45 is 1/√2. LCM of √3 and 1 is √3. √3 और 1 का LCM क्या होगा, √3 होगा. Then 1 plus 2√3 on 1/√2. Okay, 1 plus 2/√3 upon √3. और ये कहाँ है, अपॉन में है, तो इसको इंटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा, √2/1. √2 का जब मल्टीप्लाई इससे करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस 2/√6/√3. जब √2 का √3 से मल्टीप्लाई होता है तो √6 हो जाता है. ओके, √2 अगर इससे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 1 प्लस 2√3/√3. दिस इज द आंसर. स्टूडेंट, आपको ये वैल्यूज जो होंगी वो याद करनी होगी ताकि आप ये क्वेश्चंस जो है वो जल्दी सॉल्व कर सकें. ठीक है, लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं वैल्यूज में, तो उसके लिए हमने जो ट्रिक बताई थी उससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो सही है या नहीं है. जैसे sin 45 की वैल्यू हमें ट्रिक से निकालनी थी तो हम क्या करते थे, 0 0 30 45, ये कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो हम क्या लिखते थे, रूट के अंदर डिनोमिनेटर जो था वो सेम 4 रखते थे और ये 3 नंबर का है, मींस यहाँ पे ऊपर क्या कर देते थे, 2 कर देते थे, 2 हो गया, मींस 1/√2. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, trigonometric ratios of complementary angles. Let's recall complementary angle. Two angles are said to be complementary angles if their sum is 90. यदि दो एंगल्स का सम 90 होता है तो उन एंगलों को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. जैसे हमने एक एंगल थीटा लिया तो दूसरा एंगल जो होगा, फर्स्ट एंगल अगर थीटा लिया तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. इसी पर बेस्ड हमारे क्या है, कुछ फार्मूले हैं, उनको हम ट्रिक की हेल्प से समझ लेते हैं. हमने क्या किया कि एक हेक्सागोनल ले लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. ओके स्टूडेंट, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये रिलेटेड हमारे जो फार्मूले हो जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा. ओके, कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा.
सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो फिर क्या हो सकता है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग सेक 90 माइनस थीटा। ये इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम टेन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम साइन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं या कॉस थीटा 90 माइनस 1 या कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले हो गए आपके। ओके, सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू 35 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। We have sin 35 upon cos 55 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन sin 35 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 cos 60। sin 35 अपॉन cos 90 माइनस 35। 90 में से अगर 35 लेस करेंगे तो 55 आएगा। 90 माइनस 35 मीन्स 55। ओके स्टूडेंट, मीन्स 55 की जगह हम 90 माइनस 35 पुट कर सकते हैं। cos 90 माइनस 35 अपॉन sin 35 minus 2. The value of cos 60 is 1/2. Okay. Here curly bracket sin 35 cos 90 minus theta means sin theta. cos 90 minus theta sin theta. One, since cos 90 minus theta is equal to sin theta. Okay student, 1 times cancel out to 1 times. 1 square plus 1 square minus 1 means 2 minus 1. 1 is the answer. Okay. Second question is, we have 2 tan 53 degree upon cot 37 degree minus cot 80 degree upon tan 10 degree. Okay, we can write here tan 90 minus 37 degrees upon
cot 37। यहाँ पर 90 माइनस 30 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर 90 में से 37 हम लोग लेस करते हैं तो फिर कितना आ जाता है, 53 आ जाता है। मींस 53 की जगह हमने 90 माइनस 37 पुट कर लिया। यहाँ पर cot 90 माइनस 10 लिख सकते हैं 80 की जगह पे। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, एंड हियर थीटा इज 37। cot 90 minus theta means tan theta. Cancel out in 1 times. 2 into 1 minus 1 means 2 minus 1 is equal to 1 is the answer. Let's move on to our next topic. Some identity of trigonometry. Mainly 3 identity है जो हमें लर्न करनी है, और इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा ट्रिक कंफ्यूज करती हैं। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे कई सारे फार्मूले भी बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट बन सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल के दूसरे साइड शिफ्ट हो गया, तो इसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव था तो उस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड इसका फार्मूला बन सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे फिक्स रखा और साइन स्क्वायर थीटा अब की बार दूसरी साइड शिफ्ट हो गया जाके। ये पॉजिटिव था, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इससे एक फार्मूला और बन सकता है, वो क्या, अगर इस वाले फर्स्ट वाले फार्मूले में दोनों साइड क्या कर लें, रूट ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और अगर इस वाले में दोनों साइड रूट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, ये हो कैसे जाता है, जब रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कैसे, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, दोनों साइड अगर हमने रूट ले लिया तो ये क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसल हो गया, तो फिर ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद करनी है। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं इसमें, इससे भी कई सारे फार्मूले हमारे ड्राइव हो सकते हैं। कैसे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जब कॉट स्क्वायर थीटा सेकेंड साइड शिफ्ट होगा तो ये माइनस का था, उस साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब इक्वल के दूसरे साइड कोई टर्म जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा इसको उस साइड ले जाएं तो ये 1 इस साइड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें हम क्या करें, दोनों साइड रूट ले लें इसका, फर्स्ट वाले का, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें अगर रूट लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है,
cot थीटा इज इक्वल टू रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से इसके भी फार्मूले बन सकते हैं। इसके फार्मूले क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा जब इक्वल के दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो वो ये माइनस में था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। और अगर ये टेन स्क्वायर थीटा निकालना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। ओके, ये कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा ये था तो इसको ऐसे ही रखा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये उस साइड चला गया। ओके, अब अगर ये 1 इस साइड आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यही लिखा हुआ ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से ये फार्मूले आपके ड्राइव हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी याद करनी है, बाद बाकी ये फार्मूले इसी से ड्राइव हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आ जाता है कि ये कैसे प्रूव होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS क्या दिया हुआ है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यू नो अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता था अपना पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉस थीटा में क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ये जब स्क्वायर को लेगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस हाइपोटेनस से हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल मींस बेस स्क्वायर। एंड यू नो पाइथागोरस थ्योरम is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो perpendicular plus base square की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, hypotenuse square। hypotenuse square upon hypotenuse square cancel out in 1 times। यहाँ पर क्या आ गया 1, ये क्या हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से ये सेकेंड जो है आपकी आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी है, ये सब प्रूव हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दीस टॉपिक्स। ओके, क्वेश्चन इज प्रूव दैट sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। वी हैव LHS। हमारा LHS जो है वो क्या है, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, कॉमन sec स्क्वायर थीटा। अगर sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यू नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। वी राइट हियर sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Since sec square theta is equal to 1 plus tan square theta for above identity. Okay, tan square theta plus tan की पावर
4 थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, टेन स्क्वायर थीटा आ गया, टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, 10 की पावर 4 थीटा हो गया, क्योंकि पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इट इज RHS प्रूव्ड। Second question is prove that root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta. Prove that we have LHS. हमारा जो LHS है यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, देन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कॉन्जुगेट मीन्स होता है कि ये जो नीचे वाला प्लस है इसका नेगेटिव साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो फिर ये क्या आ गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज a प्लस बी, a माइनस बी इज फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos square theta. Okay, whole of square. You can write here 1 minus sin theta upon cos theta. Okay, 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा इज 1, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज sec थीटा एंड द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इज tan थीटा। RHS proved. It's enough for today's video. If you like this video, please share with your friend, subscribe this channel. Till thank you.